Hi Ketan ji. What you do sir? सर आप क्या करते हो Yeah, बिजनेस जॉब? pardon? व्हाट यू डू सर? आप जॉब करते हो कि बिजनेस करते हो? I am into job actually. I am a senior agency manager with Axis Max Life Insurance, working with this company since last 14 years, हम्म. and total work experience of around 30 years plus. ओके. नाउ आप आर यू गोइंग इनटू रिटायरमेंट? I am going into retirement most probably by August, not before that actually. हाँ, ओके ओके. That's my game plan actually, according to me. So 15 years I have to complete with Axis Max. नाउ ये दिस विल बी यूजफुल इफ यू वांट टू बिकम अ कोच, ट्रेनर और कंसल्टेंट, Okay. एंड you coach other people with your experience and with their revenue goals. So इसमें basically क्या होता है कि कोई businesses आते हैं आपको उसको consult करके. Now whatever Hmm. you have learned so far, that you can Yeah. implement it. Mostly यहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं कोई बिजनेसेस को समझाना. मोस्टली 90% इज माइंडसेट. ठीक है. इंडिया में जो Hmm. प्रॉब्लम है लोगों के साथ, इट्स अबाउट द माइंडसेट ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, राइट? It's not about बराबर. tools and technology, techniques and everything that can be hired, but उनको वो हायर करने के लिए भी माइंडसेट नहीं रहता है. सो बेसिकली वी नीड टू 90% आपका जो टाइम है उनके माइंडसेट पे वर्क ही करना है आपको. जो मोटा मोटी आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो यहाँ से अपना रेवेन्यू वगैरह बन के आता है. सो आई विल प्रेजेंट यू द प्रेजेंटेशन. आफ्टर दैट वी कैन हैव अ टॉक, राइट? हाउ दिस विल गोइंग टू वर्क. Okay. Hope you able to see my screen now. This is my company that is called Phograph Foods Private Limited. Apart from that, there are three other brands, that is Vistar Business Summit, Vistar Business Summit, Fundvest, and Coaching Community of Bharat. And in Coaching Community of Bharat, there are more than 50 to 50 plus coaches, trainer, and consultant, 50 plus vendors, and a whole community has a 500 years of experience in their respective field. Now we are based at Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. Now, in this 15-minute Zoom presentation, we will understand what are the 27 revenue model which you can implement in your coaching consulting business and make a revenue of 1 to 25 lakh rupees a month. Now, what we do as a service provider, we give you the business consulting, driving strategic growth, skill building, lead generation, closing support, coaching and training, delivery, transformation, sales and marketing support, vendor support, service providing, and digital transformation for coaching and consulting business. We have a dedicated 50 team who's working with, which will work with you to transform your coaching business. Now, it's only coaching business in India is around 44,000 crore rupees industry. Globally, it's around 2 lakh crore industry, and in coming years, it will become a $10 billion industry in India. Now, there are three categories in the industry right now. Now, the A category people have having a good revenue, market share भी उनके पास बहुत ज्यादा है.
Now what these people have done, and they also started with zero only. ऐसा नहीं कि इनके forefathers they were into this business, but they have newly started coming in the market and started this business. Now Vivek Bindra is making around 300 crores in his coaching business and other services. Rahul Jain is making around 100 crore plus with his coaching and consulting business and other services. Rajiv Talreza is making around 22 crore rupees in his coaching business. Now there are category or B people who are making around 50 lakhs to 1 CR in their business. Now there are category C people. Now these people are amateur business people. They never invest in their business, because the industry dynamics keeps on changing every 6 months, 1 year, 2 year, 3 year. Now these people never upgrade themselves, नए trends वगैरह follow नहीं करते. That's why their business gets stuck. Or maybe in 3 months, 6 months, or maybe trying for 1 year, 2 year, after they fail and they close down their coaching and consulting business, right? With the right strategies, tools, and coaching, they can get to a next level, but they never invest in their business. That's why they're getting stuck. Now, as we see their revenue, we can tell what stage is their business right now. Let's say if you make 0 to 50,000 a month in your coaching business, now you're at stage one. There is no niche clarity. आप कभी NLP कोच बन जाते हो, कभी डिजिटल मार्केटिंग कोच, कभी AI, कभी बिजनेस कंसल्टिंग, कभी NLP. So you keep on changing your niches, your industry type. That's why the people get confused. और आपका लो टिकट या आइटम ही रह जाता है. यू स्ट्रगल विथ योर सेल्स और ये सारी चीजें, सिस्टम्स नहीं रहते आपके पास. That's why you make around 0 to 50 k per month. Now, once you understand this situation, now when you try to work on, आप अगर थोड़ा इंडस्ट्री में अपना रिसर्च करके जब आप आगे बढ़ जाते हो, now you go into stage two. Now this is called a stability stage where you make around 50,000 rupees to 2 lakhs a month. You have some clients with you, but there is a inconsistency in your leads depending upon the referral. There are no proper leads in your system. That's why you make around 50k to 2 lakhs a month. Now, once you understand this situation and you move further, now you move to growth stage. Now you make around 2 lakhs to 10 lakhs in your coaching business. Now you have regular leads, sales are आपके, you start a authority, you have some time to scale. Now you want to increase your revenue, then you move to stage four where you make around 10 lakhs to 50 lakhs a month. You have a predictable revenue, you have a team system in place, your brands keep on growing. Now, when you are at stage five, you make around 50 lakhs to 1 CR a month. You are an industry leader and you have a multiple streams of income, right? So these are the stages of a business where people have to go to increase their revenue. Now, these are the 27 business revenue model which you can implement in your coaching business, and each segment will bring some certain revenue in your business, and to increase that revenue you have to move to the next segment. ना जब आप वन ऑन वन कोचिंग करते हो तो वहां से आप 101 से लेके 2 लाख कर सकते हो. जब आप ये रेवेन्यू पे आपका बिजनेस एक सीलिंग पे पहुंच जाता है. नाउ व्हेन यू वांट टू इंक्रीज द रेवेन्यू, नाउ यू हैव टू ऐड सम न्यू स्ट्रेटजीज एंड न्यू प्रोग्राम्स इनटू योर सिस्टम. जहाँ पे वन ऑन वन कोचिंग के बाद नाउ यू मूव टू ग्रुप ग्रुप कोचिंग. तो ग्रुप कोचिंग में क्या होता है, लेट्स से यू हैव रियली गुड काइंड ऑफ प्रोग्राम विथ यू, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ज्यादा है. तो आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पे कोई भी आपका कोर्स खरीदने के बाद उसको 100% रिजल्ट मिलता है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, उसके बिजनेस में ग्रोथ वगैरह आने लगता है. नाउ इससे क्या होता है कि आपका सारा ध्यान है ना वो खाली आपके कोचिंग में ही चला जाता है. तो बाकी फिर आपको टाइम जो है वो आपका सेल्स, मार्केटिंग, टीम, फाइनेंस, कंप्लायंसेस, तो ये सारा जो बिजनेस का जो साइड है वो थोड़ा वीक पड़ जाता है. नाउ व्हाट वी डू इज वी कनेक्ट टू अदर पीपल हु आर स्ट्रांग इन द अदर साइड ऑफ द बिजनेस, वेयर वी क्लब विद देम. यू उनके साथ क्लब करके फिर आपका दूसरा प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करते हैं.
तो जहाँ पे क्या हो रहा था, जब आप 10-20 हजार 30-40 हजार या 50 हजार रुपए चार्ज कर रहे थे, नाउ यू कैन डबल डाउन योर प्रोडक्ट प्राइस बिकॉज यू हैव ब्रिंग मोर पीपल इनटू द सिस्टम। जिससे क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस कंसल्टिंग। तो बिजनेस कंसल्टिंग को क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, फाइनेंस का उनको कुछ चाहिए, ऑपरेशंस का चाहिए, फ्रेंचाइजी का चाहिए, राइट। जब ये सारा कोर्स अगर एक ही में मिल जाता तो पीपल लव टू बाय दोस थिंग्स, राइट। नाउ ग्रुप कोचिंग में फिर दिस आर द बेनिफिट्स। नाउ यू कैन मूव टू वेबिनार्स, हाई टिकट सेलिंग, फिजिकल इवेंट्स हो गए आपके, मास्टरमाइंड्स, making other people coaches. So these are the revenue which you can slowly implement in your business. Now let understand deeply, थोड़ा सा दो सेगमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी में दे देता हूँ, राइट। दैट इज कॉल्ड ग्रुप कोचिंग। नाउ ग्रुप कोचिंग में मैंने आपको बताया कि जो आपके बिजनेस में जो अभी कमी लग रही है, आप बाकी लोगों को ला सकते हो, एंड यू कैन सेल योर प्रोग्राम प्राइस एट हाई प्राइस। नाउ सिंगल कोचिंग में लेट्स से कि अगर आपका सेलिंग हो जाता है बिजनेस का कि 50 हजार से 1 लाख रुपए तक आप नहीं कमा पा रहे उसके, नाउ यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज ग्रुप कोचिंग, जहाँ पे आपकी यू हैव मल्टीपल कोचेस विथ यू, आपका ट्रस्ट लेवल ज्यादा बढ़िया हो जाता है इन द कस्टमर आइज। एक तो आपको टेस्टिमोनियल्स मिल जाती है, पर्सनल ब्रांडिंग आपका बढ़ जाता है, सोशल मीडिया प्रूफ आपके बढ़ जाते हैं। नाउ जहाँ पे हाई हाई टिकट सेलिंग हो जाता है, जहाँ पे आपका 5-10 हजार का प्रोडक्ट बिकने में बहुत टाइम लग रहा था पहले, नाउ जब आप ग्रुप कोचिंग वगैरह करते हो तो वही प्रोडक्ट आपका 50 हजार 1 लाख या 1.5 लाख में इजिली कस्टमर ले लेता है। ना ऑडियंस पूल जो है, जब भी आपके पास अभी 100-200 कस्टमर हो गए, उनके पास 500-1000, तो ऐसे एक ऑडियंस पूल बढ़िया बनता है, जहाँ पे एक तो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और एक तो ऑर्गेनिक ग्रुप्स से आपको ऑर्गेनिक लीड्स वगैरह आती है, वेयर यू कन्वर्ट मोर पीपल इनटू योर सिस्टम, where are there are multiple upsells opportunity inside the program where you are selling high ticket consulting of 2 lakhs to 10 lakhs, फिर फ्रेंचाइजी डील्स वगैरह आप उनको बेचते हो, मास्टरमाइंड्स अपना बेचते हो। नाउ अथॉरिटी कम्स फास्टर इन द ग्रुप कोचिंग सेगमेंट, जहाँ पे आपका साइज सेल्स साइकिल रिड्यूस हो जाता है, फॉलोअप्स आपको इतने नहीं लेने पड़ते कस्टमर्स के साथ, कस्टमर आप पे ज्यादा ट्रस्ट करता है, एंड मनी कम्स फास्टर इन योर कोचिंग प्रोग्राम। Now, at the end, when we are into solo, now making a 5 to 10 lakh rupees a month, it's a really challenging thing. But वही group coaching में you are easily able to make 1 CR to 5 CR a month. Now, final insight इसका ये है, group coaching का, it's not a program, it's a business ecosystem monetizing machine. You are not selling a coaching, you are selling training growth engines. Now once your business आपका वन ऑन वन ऑटोमेट हो गया, आपका ग्रुप कोचिंग ऑटोमेट हो गया, नाउ यू कैन फोकस योर टाइम एंड एनर्जी टू फिजिकल इवेंट्स, जहाँ पे आप अपने सिटी में एक फिजिकल इवेंट्स कर सकते हो, जहाँ पे दो रेवेन्यू मॉडल इसमें बनता है। एक तो टिकट सेलिंग होती है, आपकी 5-10 हजार रुपए का टिकट बिकता है इवेंट में आने के लिए, फिर उसके बाद 2-3 दिन का इवेंट रहता है, तो इवेंट के लास्ट में आप अपना 1 साल का प्रोग्राम पिच करते हो, दैट कुड बी अराउंड 1 से लेके 1.5 से लेके 2-2.5 लाख रुपए तक। नाउ दिस आर द 50 पीपल हु विल हेल्प यू इन योर कोचिंग बिजनेस टू, हम लोग जितनी भी स्ट्रेटेजीज रेवेन्यू आपको बताए टू अचीव दोस थिंग्स। नाउ दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम, जहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, तो मार्केट में माइंड वैली है, एक्सली है, सक्सेस ज्ञान है, ग्राफी है, क्लास प्लस है, टैग में, तो ये सारे लोग 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख ऐसे चार्ज करते हैं टू गेट इन टू द रेवेन्यू, बट वी आर चार्जिंग 50,000 फॉर होल ईयर। नाउ दैट टू यू हैव टू पे ओनली 15%, दैट इज 7,500। Within 2 or 3 days, your program will be started and you will start making the money. That could be your one-on-one coaching or your group coaching. Now, this was a presentation. Now, if you have some questions, you can ask me. देखो, I have attended sorry, क्या बोलते हैं, सुदर्शन साबट, you might have heard across sir. सुदर्शन साबट, सावंत ना, माइंड मास्टर वो तो कोच, मुंबई में कंडक्ट करते हैं, दैट इज हाँ मुंबई में, उनका मैंने किया है। फिर
हाँ। फिर सीधा ट्रेन अपना क्या बोलते हैं। हाँ। द ट्रेनर ना उनका। हाँ, ट्रेन। तीन सो दिन अटेंडेड दैट, उनका मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था। दैट वाज अ शॉर्ट क्रैश कोर्स फॉर अराउंड 3 days एक्चुअली। अच्छा, 3 डेज का कैश कोर्स था, तो कितना, 1.5 लाख रुपए का है कि कितने रुपए? आई पेड अराउंड 25 30,000 50,000 bucks। ओके, 50,000। और आपका उनका वो गोवा में या लोनावला में किधर कंडक्ट करता है? लोनावाला में किया था सर। हाँ, तो वो कितना, 7-8 दिन का रहता है? हाँ, 7 8 दिन का। तो वो किया आपने? मैंने किया सर। वो 7-8 दिन का भी कर लिया आपने? हाँ, यानी मैंने तो 7 7 दिन नहीं, 3 दिन, 3 और 1 पहला इधर 2 दिन का अलग इवेंट किया था। वन वन डे इवेंट इवेंट बोला ना, जैसा आपने वन टू हम्म। वन क्लासेस करते हो ग्रुप में, हम्म। ओके। छोटा छोटा बैच में। उनका सुदर्शन सर का किया है, फिर सिद्ध शेखर सर का किया है। नाउ व्हाट वी डू इज कि देखो, हम लोग दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, दे आर गोइंग टू। नहीं नहीं, यानी मैंने कुछ ना कुछ मैंने छोटा मोटा मैं आई एम डूइंग एक्चुअली अक्रॉस, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर अ इंडिपेंडेंट, आई वांट टू बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद अ कंपनी। दिस इज माई गोल एक्चुअली। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन कंपनीज, स्टार्टअप्स वगैरह में? या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके। नाउ उसके भी सर्टिफिकेशंस लेने पड़ते हैं ना, आप डायरेक्टली तो नहीं हाँ, तो ज्वाइन? उसके लिए आई हैव ज्वाइंड स्किल स्किल इंडिया। मेरा भी क्लासेस चालू, पढ़ाई बीच में, मेरा नहीं, हेवी सीजन आ गया, थोड़ा और टाइम हो गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर व्हाट यू कैन डू इज कि बहुत सारे स्टार्टअप्स है, ठीक है? हाँ। अगर हाँ। आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स अच्छी है, क्योंकि ये बच्चे लोग को मार्केटिंग एंड सेल्स नहीं आते, तो आप ऐसे ले सकते हो, और आप इनके साथ, इनके कंपनी में आप 10-20% ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे आप। बराबर। सो कभी लिया था आपने प्रोग्राम इनका? कौन सा स्किल इंडिया का? नहीं नहीं, ये सुबह। साबट सर का? मेरे को लगता है 1 1.5 साल हो गया। कितना बनाया है आपने इससे, कुछ पैसे बनाए? नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं बनाए। दैट वाज इंटेंशन, वाज नॉट मेकिंग मनी एक्चुअली। हम्म। मेरा थोड़ा सेल्स डिटीरिएट हो रहा था, तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस अपने आप पे थोड़ा लो हो रहा था। हम्म। तो वो टाइम पे फोन आ गया और मैंने कर दिया दिस आउट इसको। ओके। तो कभी कभी मतलब, इमोशनली आता है ना, आदमी वीक हो जाता है। नहीं मैं ऐसे काम कर रहा देखो, हूँ अगर ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कुछ आ रहा है। नहीं रहता है, बिकॉज हाँ। हर नहीं, प्रोग्राम। मेरा ऐसा हुआ है, यानी मैं थोड़ा डिप्रेशन टाइप चला गया। मेरा क्या हो गया, एक एजेंट ने ना बहुत सारे क्लाइंटों से पैसे लिए, और मेरे को देखो, थोड़ा ये दिस इज कर्मा रहता है ना, क्या हाँ, होता तो मेरे नहीं, मेरे एजेंट ने ना, मैंने भी इंट्रोड्यूस करवाया, किन से थोड़े थोड़े पैसे लिए, फिर उनको दिए नहीं। तो मेरे को एक्चुअली वो थोड़ा शट डाउन हो गया, और मैंने अच्छी अच्छी जगह पे मेरे फेस रेपो पे इंट्रोड्यूस करवाया। नहीं, क्या होता है कि लेट्स से कि अगर है ना, भगवान को आपके जेब से पैसा निकालना है ना, तो वो कैसे भी निकाल लेता है। या हाँ, तो वो बराबर है, वो मैं समझ वो गया। तो आपका मगर वो टाइम एक्सीडेंट पे कारण, देखो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता, हाथ पैर टूट जाता, तो तो भी जाता था। तो भी पैसा जाता, चलो ऐसा हाँ, तो चला। भी जाता था। नहीं, मैं बिलीव करता हूँ कर्मा थियरी में, हाँ। मतलब वैसा आई बिलीव दैट। हम तो और बोलते, सब लोग बोलते लक, बोलते आई बिलीव दैट लक इज लेबर अंडरस्टैंडिंग करेक्ट नॉलेज। तो मेरा गलती था, या ना कुछ जो हुआ ऐसा है वो रिपेल्ड है। ऐसा कोई नहीं है कि आपने कुछ वो प्रोग्राम से सीखा नहीं रहेगा, एवरी प्रोग्राम टीच यू समथिंग, राइट? तो आपका पैसा नहीं नहीं, कभी उसमें रुकता कुछ नहीं क्या है। है, बहुत सारी चीजें अच्छा था उन्होंने। बहुत हेवीली गया, यानी यूज टू टेल अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग टिल वी हम्म। यूज टू हैव अराउंड 12। अच्छा है ना, इट वाज वर्थ एक्चुअली। मेरे को जो पैसा दिया, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मैंने गलत दिया। वो आपको, आप जब लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ जाओगे तभी आपको समझ में आएगा, अरे यार वो तो अच्छा ही चीज था जो मैंने कर लिया उसको, है। बराबर है, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, कुछ काफी चीजें सीखा जो अपने, हम्म। बहुत चीजें मालूम है, मगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, वी फॉरगेट इन अवर रूटीन हाँ। कोर्स ऑफ लाइफ। नाउ व्हाट वी डू इज कि यहाँ पे एक तो आप हम लोग आपके रेवेन्यू पे ध्यान देते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे, 1 से लेकर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ठीक है? तो ओके। देर विल बी अ मल्टीपल प्रोग्राम्स इन द ग्रुप्स। एक तो वन ऑन वन हो गया आपका, फिर ग्रुप कोचिंग हो गया, फिर फिजिकल इवेंट्स वगैरह हो गए। फिर ऐसे धीरे धीरे मतलब आपको टाइम मिलते रहेगा, तो एक एक प्रोग्राम में हम आपको डालते रहेंगे। जैसे वन ऑन वन आपका ऑटोमेटेड हो गया, फिर आपको कुछ टाइम बचने लगा,
देन वन ऑन वन एंड ग्रुप कोचिंग। तो ग्रुप कोचिंग में क्या होगा, 5-6 जन रहेंगे। उसमें हम्म, आपको कुछ एक्टिविटी वगैरह ले लेना है उनसे, या तो आप कॉलिंग कर सकते हो या तो जूम प्रेजेंटेशन कर सकते हो। मे बी आप स्टूडेंट जो ऑनबोर्ड होने के बाद उनका कुछ सेशंस वगैरह ले सकते हो आप, ठीक है। तो 5-10 काम रहता है वहां पे, तो आप वो कोई भी काम ले सकते हो। तो लेट्स से कि अभी एक ग्रुप इवेंट है, वहां पे 4 लोग हैं, 25,000 का प्रोग्राम है। एक हफ्ते में उन्होंने 10 लोगों को क्लोज किया। दैट वाज अराउंड 2.5 लाख रुपए का उनका रेवेन्यू बना। तो 5 लोग हैं तो हर आदमी को 50-50 हजार रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक तो ये चीज, यहाँ से आपका रेवेन्यू आएगा। और सेकंड, आपके पास अगर 2-3 घंटा स्पेयर टाइम है तो आप अपना कुछ प्रोग्राम बना सकते हो और आप सिखा सकते हो दूसरों लोगों को। एंड यू कैन चार्ज वॉट एवर यू वॉन्ट। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, कितना भी आप अपने प्रोग्राम का पैसा रख सकते हो। फिर इसकी जो क्लोजिंग आएगी वो आपकी रहेगी, ठीक है। तो ये दो चीज आप कर सकते हो। फिर इसके बाद महीने में एक आध बार अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप फिजिकल इवेंट्स वगैरह में भी जा सकते हो। मुंबई में आपने एक इवेंट कंडक्ट कर दी है, ठीक है। तो एक तो टिकट्स, टिकट से भी रेवेन्यू आएगा। फिर उसके बाद जो हम लोग वहाँ पे अपसेल करेंगे उसका भी रेवेन्यू। बराबर। हाउ डिड यू गेट माय नंबर सर, कहाँ से मिला आपको ये ठीक है, नंबर? आपने ग्रुप्स वगैरह में रहोगे ऐसे। ओके, ठीक है। I have been a student with Future University through. सो I spend at least around 2, 3 thousand, 5,000 bucks a month on my self learning. I've implemented over a period of last 2.5 years ओके। to improve myself. So now I've been able to create some digital pages. पेजेस थोड़े अब बना रहा हूँ, फेसबुक देखो पे क्या मेरा है ना कि प्रोफाइल है, हम लोग क्रिकेट का। कंटेंट पे इतना ये नहीं करते आपका डायरेक्ट हम लोग, क्योंकि कंटेंट तो मार्केट में बहुत पड़ा है। ठीक है, आप यूट्यूब बहुत पे पता। जाओगे, हमसे अच्छा कंटेंट तो यूट्यूब में पड़ा है। और हमारे बाप लोग बराबर। है ना, तो उनसे अच्छा बराबर। प्रोग्राम हम लोग ला ही नहीं सकते। एआई वगैरह ये सारी चीजें ना, वी हैव बराबर। टू फोकस ऑन सेल्स, कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लोग के साथ हम बात करें, इंटरेक्ट करें, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें और डायरेक्ट कस्टमर को क्लोज करें ना। हम लोग अगर अभी ये हमारा प्रोग्राम बनाने पे ध्यान दे देना, तो आप प्रोग्राम बनाने में ही आपका 2-3 साल निकल जाएगा। फिर भी वो 90, कभी 100% बनेगा ही नहीं। ठीक है, सो वी डोंट बिलीव इन कि पुटिंग यू इन द सेम थिंग, कि आपको आपसे प्रोग्राम बनाते रहे। तो वी डोंट बिलीव इन दैट। वी डायरेक्टली बिलीव दैट यू एटलीस्ट आप विद इन अ मंथ 100-50 लोगों को क्लोज कर लो अपने प्रोग्राम के थ्रू, एंड यू मेक सम रेवेन्यू ऑफ 5-10 लाख रुपीज विद अस। ओके। सो दैट वी नॉट So how do I find my niche area actually? Because I'm into the field of finance what we'll do for is almost around. we have around 5 to 6 ग्रुप्स एक्टिव, ठीक है। Hmm. तो मैं हर ग्रुप में आपको डाल दूंगा ना। Hmm. अब यू कनेक्ट विद दिस ग्रुप्स जिसमें आपको अच्छी वाइब मिल रही है, आपको अच्छा समझ में आ रहा है, यू कंटिन्यू विद दैट ग्रुप। फिर आपको अपना निश वगैरह पता चल जाएगा कि यार मुझे किस में इंटरेस्ट आ रहा है, किस में मेरा नॉलेज बढ़ रहा है। Okay. Over a period, I tell my personal experience है ना, मैं हाँ आपको मैं हाँ, थोड़ा मतलब मेरा क्या मेरा होगा कि आप इंट्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा से ज्यादा डिटेल जो। डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ. I started my career into packaging industry. I was into tin packaging industry. हम्म, So we used to manufacture tin containers for Godrej, ITC, Raj Oil Mill, Kanji Kalyanji, Ahmad Umar, every. So I हम्म, was basically a salesperson doing marketing coordination, and I became a manager with a tin company. ओके। And I have working experience of almost around 15 years. हम्म, That I was the whole and soul of the company. ऐसा बोल सकते हैं. We used to import everything, all administrative part I have done at course. 200 people used to report me directly, indirectly. नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि एक तो आप टीम बिल्डिंग पे बात कर सकते हो, क्योंकि आपने 200 लोगों के साथ काम किया है, उनको मैनेज किया है, राइट। और दूसरा है, आप सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में भी समझा सकते हैं कि हाउ टू गेट बिगर क्लाइंट्स। ये एटिकेट वो मोस्टली क्या है ना, इंडिया में माइंडसेट का प्रॉब्लम है। बाकी आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह इतना तो समझाना नहीं है, बट डीपली
लेकिन आप ओपनिंग स्टेटमेंट कैसा रखते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या रहना चाहिए, आप पॉजिटिव थिंकिंग करके मतलब एक कस्टमर्स के साथ बात करो, तो ये बेसिक बेसिक चीजें भी आप बताओगे ना, दैट कुड बी अ बेटर थिंग, राइट। ना फैमिली में क्या होता है कि फैमिली में एक बेसिक चीज भी नहीं है। अभी जो इंडियन फैमिली में है ना, तो दादाजी वगैरह तो रहते नहीं, इनको पता भी नहीं है कि हस्बैंड से कैसा बिहेव करते हैं, अपने बच्चे से कैसा बिहेव करते हैं, राइट। तो ये चीजें भी आपने सिखा दिया ना, तो वो बहुत बड़ी बात है इनके। बाकी स्ट्रैटेजीज वगैरह तो है हमारे हमारे पास भी टीम्स है, हमारे पास भी ये सारी चीजें हैं। अगर कुछ बड़ा स्ट्रैटेजीज है, वी आर रेडी टू हेल्प यू ऑन दैट, राइट। बाकी हमारे साइड से भी आपको सारी चीजें हम बना के देंगे। On my other side of experience, I am been a basically a fundamental analyst actually. ओके I have been, I have done masters in financial management. ओके ओके Okay. I used to write a research report prior to working with Axis Max Lab. I used to write small research reports on stock basis on PB ratio, fundamental analysis, stock ओके। comparison analysis. So that was my forte across. That is my passion also. I अभी भी कभी कभी कुछ ना कुछ लिखता हूँ, मेरे डायरी में भी कुछ चीजें मिलेगी एक स्टॉक के बारे में. दिस इज हाउ इट इज. So this is my other type of, and third is, and I'm into insurance actually basically. So comparison with other products, financial products, how financial planning should be done properly. What are the ifs and buts केतन सर, of व्हाट विल financial हैपन, planning? जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात करोगे, उनको कंसल्ट करोगे ना, मैं ऐसा नहीं है कि आज आपको किसने क्वेश्चन पूछा तो तुरंत आपको उसका आंसर देना, यू कैन टेक सम टाइम, हाँ, कभी कभी एक दिन, हाँ बराबर है, ठीक है. आप 2-3 दिन का टाइम लेके स्ट्रैटेजीज वगैरह बना के फिर कस्टमर के सामने जा सकते हो। दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस आर द व्हाट ओके. पीपल इन योर इंडस्ट्री इज फॉलोइंग। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट वगैरह मिल जाएगा। सो जब आप 10-20-50 लोगों से आप बात कर लोगे, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि यार कस्टमर को क्या चाहिए, मुझे क्या देना है ना। तो ऐसा आपका प्रोग्राम वगैरह बन जाएगा, धीरे धीरे आप स्केल कर सकते ओके. यू बीन इन द कोचिंग इंडस्ट्री सिंस हाउ लॉन्ग सर, कितने साल से अपना ये हो। देखिए, मैं काम? 12 साल से बिजनेस कर रहा हूँ मैं, और जो मेरी ओके. मेन कंपनी है दैट इज कॉल्ड फोगरा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। नाउ व्हाट वी डू इज कि यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट है हमारा दैट इज इंस्टेंट ग्रेवीज। तो ओके. इसको हमने पूरा आउटसोर्स किया है, हम नहीं करते। अ, एक कंपनी है हमारे लिए, वो पूरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं आप? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है हमारे लिए। वी टेक 90% हम लोग उनको दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो सारा वही कर रहे हैं। और जो भी हमारा रेवेन्यू है, लेट्स से कि ये महीने में हमने 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, तो वी टेक ओनली 2 लाख रुपीज, बाकी 18 लाख रुपीज उनको चला जाता। नाउ व्हाट वी डू इज कि हमारे जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो अभी 2 करोड़ रुपए है। नाउ इन कमिंग ईयर वी वांट टू मेक इट 10 करोड़। तो अभी ये 10 करोड़ के लिए नाउ वी आर डू, हमने 2-4 कंपनी भी एस्टेब्लिश किए, तो जहाँ पे ये सारा रेवेन्यू हम लोग वो कंपनी में दिखाते हैं, तो जिससे हमारा वैल्यूएशन बढ़ जाता है। You need to increase your sale. Normally, one time the हाँ, sales value is your market value. तो उससे क्या होता है कि जैसे अभी हमारी कंपनी का जो रेवेन्यू है राइट नाउ इज वी आर मेकिंग अराउंड 30-40 लाख रुपीज अ मंथ, राइट। नाउ इसको 1 CR पे Okay. लेके जाएंगे, तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, फिर उसके हिसाब से कंपनी वैल्यूएशंस बढ़ जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, राइट। नहीं नहीं, बराबर. हम लोग ये सेल्स में हम लोग इक्विटी एनालिसिस आई डू इट अक्रॉस. नॉर्मली वन टाइम्स ऑफ सेल इज योर हम ये क्या है ना मार्केट कि ना वैल्यू. इंडिया इंडिया में क्या है, मैक्सिमम 3 टाइम्स भी जाता है, ठीक है. और या तो ऑपरेटिंग मार्जिन पे आएगा फिर. इंडिया हैज बिकमिंग फॉरेन, मतलब अमेरिकन टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रहे हैं। तो अ, अभी यहाँ पे ना प्रोडक्ट बेच के पैसा नहीं कमा पाओ, कमोडिटी 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 आप कमोडिटी में नहीं बिकेगा, कमोडिटी में नहीं कमोडिटी बिकेगा. में आप कभी करोड़पति बन ही नहीं सकते, आप पूरा जिंदगी स्ट्रगल करोगे। बराबर. ओके सर। तो अभी इसमें व्हाट आर द, अभी समझो इफ आई ज्वाइनिंग में क्या बोला आपने, 50,000 इज द, क्या फिफ्टी बताया आपने? थाउजेंड इज फॉर होल ईयर, 12 महीने में आपको हमको 50,000 देना है। लेकिन अभी स्टार्ट करने ओके. के लिए आपको 7,500 देना है, और बाकी ओके. आपको 40,500 दैट इज यू हैव टू पे
एक साल के अंदर। ठीक है। 42,500, ओके। हाँ, 42,500 वो आपको 12 महीने आराम से पे करने हैं, कमा कमा के। नाउ ओके। विद इन 2-3 डेज में आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप सारी चीजें मुझे दोगे कि मुझे ये चीज आते, तो आज या कल मैं आपको एक ग्रुप में डाल दूंगा, जहाँ पे वहां पे आपका रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना प्रोग्राम पे ध्यान दे सकते हो। 2-3 दिन में मैं सारी आपकी स्लाइड्स वगैरह कॉलिंग सारा स्टार्ट बना दूंगा आपका। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन दी थी मेरी कंपनी के बारे में, मेरे प्रोडक्ट के बारे में, तो बराबर, बराबर। सेम चीज आप दोगे। फिर इसके बाद व्हेन यू से कि बालकृष्ण आई एम रेडी रहा, तो हम लोग कॉलिंग करके आपको ऐसे कस्टमर्स भेजेंगे, जहाँ पे आप 15-20 मिनट का इनको प्रेजेंटेशन दोगे कि मेरी कंपनी आपको ये चीज सिखाएगी, ये आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आपका रेवेन्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। लेट्स से कि आप 1 लाख रुपए का तो रेवेन्यू। 3x 10x की बात करते, बराबर। हाँ तो वो आप, आता है नॉर्मली हाँ एडवांस। हाँ, तो वो आप ऐसा बता सकते हो कि 1 लाख का भी धंधा है तो आपका मैं 2 लाख 3 लाख पे लेके जाऊंगा। तो फिर उसके बाद आप कस्टमर साइन ऑन कर सकते हो, फिर ऑनबोर्डिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद उनको जो जो प्रॉब्लम्स आती है, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं आप कर लेना। नहीं तो फिर हमारे कोचेस कंसल्टेंट रहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको क्या सोल्यूशन दूं मेरे कस्टमर को, तो हम लोग आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे देंगे। तो आप, Okay, so we have a platform where we can interact our हाँ हाँ, solutions also, and what या best can be done for the client across. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी 100+ पीपल, राइट, जो आपको हेल्प कर देंगे। Okay. They are specialized in individual fields actually. या जैसे कोई होटल इंडस्ट्री का है, तो होटल इंडस्ट्री का आया कोई प्रॉब्लम लेके आया, कोई डिश वगैरह का प्रॉब्लम लेके आया, तो आपको क्या करना है कि डिश का तो आप नहीं समझा सकते। व्हाट यू कैन टेल इज कि आप, व्हाई डोंट यू हायर अ शेफ कंसल्टेंट, राइट, जो आपका डिश वगैरह सब बना के दे देंगे। ठीक है। जैसे क्या होता है कि एक डॉक्टर रहता है, वो हार्ट स्पेशलिस्ट रहता है, लेकिन अगर उसको कुछ आंख बीख का प्रॉब्लम आता है तो वो क्या करता है, रिफर कर देता है। Hmm. ऑर्थोपेटिक्स डॉक्टर रहता है, जैसे हार्ट का है, तो अगर आप ऑर्थोपेटिक्स के पास चले जाओगे हार्ट का प्रॉब्लम लेके, तो वो क्या करेगा, रिफर कर देगा, गो टू दिस Refer डॉक्टर। करते हैं। सो Correct. सेम वे, अगर आप आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप कर दोगे, नहीं तो नहीं हो रही, तो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन रिफर, यू कैन हायर अ कंसल्टेंट, देयर आर लॉट ऑफ कंसल्टेंट अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। Okay. नहीं तो आप अपने हमारी जो कम्युनिटी, आप उसमें भी हेल्प ले सकते हो। Okay. I was prepared some courses on fundamental analysis actually of stock. Okay. So that is या, my बात, forte area also. Reading a stock, कोई भी बैलेंस मेन, शीट रीड करना है ना, तो that is my forte across. सब मेन थिंग क्या है ना, आपको क्लोजिंग आनी चाहिए। ठीक है। हाँ, क्लोजिंग नहीं आ रहा है, वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है क्लोजिंग का, मैंने कुछ किया नहीं है। कोई, देखो, मेरे को किया भी है तो ट्रस्ट पे 1 या 2 पीपल, समझो मैंने आपको 2 स्टॉक बताऊंगा ना, तो यू विल बी फैन ऑफ माइन फॉर हाँ एवर। समझ गए? मगर आप मेरे को फोन करेंगे, बट आई डोंट चार्ज यू, दिस इज ओनली फ्रेंडली, दिस हाँ, हाउ तो इट इज डन ओवर वो पीरियड ऑफ वो टाइम, दिस चीजें हाउ इट इज। काम में नहीं तो आते। आई हैव नॉट चार्ज अक्रॉस एनीथिंग। मैंने अपना वैल्यू कभी इवेल्युएट नहीं किया, कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ दे दिया तो मैंने ले लिया, ऐसा ही सब है। नहीं नहीं, समझ गए? वो क्या है ना, एक बिजनेस को आफ्टर बिजनेस, अर्निंग वट एवर यू पेड मी, दैट इज ओके, दिस हाउ इट इज। लेट्स से अंडरस्टैंड कि अगर आप कल को टीम रखते हो, कॉलिंग की टीम रखते हो, एडमिन रखते हो, ये सारी चीजें, उनको सैलरी तो तो देना। खर्चा है, बराबर है, तो यू नीड टू स्पेंड, यू नीड टू अर्न ऑल्सो एंड टू स्पेंड। फिर अभी आपका इंटरनेट है, लैपटॉप का है, आपका मोबाइल है, रिचार्जेस है, कस्टमर से बात करते हो, तो एवरीबडी, यू नीड टू पे फॉर एवरीवन, राइट। या यस, वो तो बराबर है। वो तो अपना माइंड सेट जब में नहीं जब रहता है। जब आपने बोला कस्टमर, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, आई वुड नॉट चार्ज। नहीं, जब आप कस्टमर का फायदा करा रहे हो ना, आपसे वो लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपको 10-15 हजार देने में क्या, उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। नहीं होना चाहिए। यू ओके कैन सर, मैं सेंड मी द डिटेल्स अक्रॉस ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। नाउ व्हाट तो विल डू मेरा है, बेसिक ये है तो, हाँ, तो मैं मैं आपको थोड़ा है पढ़ ना, भी लेता हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे बाकी लोग सारा मीटिंग्स करके, साइन अप्स करके, दे हैव स्टार्टेड देयर थिंग, वो मैं भेज देता हूँ आपको। इफ यू फील दैट दिस प्लेटफॉर्म कैन हेल्प यू, देन यू कैन ऑन बोर्ड विद अस, राइट। नॉट इशू, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है, यानी
समझो इसमें स्टार्टिंग में आप कुछ छोटा मोटा कुछ काम देते हैं क्या मेरे को, हाउ टू अर्न और समथिंग, और मे बी सेशन में समझो 2 जन जा रहे हैं उसके साथ हम गए, ऐसा कुछ फिजिकल सेशन में या ऐसा बॉम्बे में कुछ रहेगा तो? नहीं, बॉम्बे में विल स्टार्ट फिजिकल इवेंट्स में भी 2-3 महीना लगेगा उसको। ओके। अ, अभी कोई ऐसा इवेंट नहीं है स्पेसिफिक नहीं, है? जैसे अभी लेट्स से कि अगर हमने मुंबई में इवेंट कंडक्ट किया 10 लोगों के साथ, आपको भी इन्वॉल्व किया, तो अगर वो इवेंट में हम लोग 50 लाख रुपए कमाते, टिकट सेल करके, हमारा हाई टिकट करके, तो हम लोग वो 10 लाख रुपए सब, सॉरी, वो 50 लाख रुपए सब में डिवाइड करेंगे, दैट वुड बी 5 लाख रुपीज ईच, ईच ईच पर्सन विल गेट। तो ओके, यही वो तो बिजनेस। इवेंट में वेंचर भी करना पड़ेगा ना, प्लस माइनस होएगा वैसा भी। हाँ, तो देखो इसके लिए ना कि आप पहला पैसा कुछ कमा लो। ठीक है, बराबर। देखो, एक इवेंट कंडक्ट करने के लिए अगर हमको 200-300 लोगों को बुलाना है एक 5 स्टार होटल में, तो 10 लाख रुपए तो खर्चा हो ही जाता है। बराबर। ठीक है, तो 10 लाख रुपए खर्चा होता है, तो सबको 1-1 लाख रुपए डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 लाख डाल के 5 लाख निकल रहा है उनका, तो क्या क्या दिक्कत है। हाँ, द इवेंट शुड बी सक्सेसफुल, बराबर। हम्म। ना वो इवेंट सक्सेसफुल कैसा होता है कि हम लोग पहले ऑनलाइन टिकट्स वगैरह बेचते हैं। बराबर। जब हमारा ऑनलाइन पूरा टिकट बिक जाएगा, देन विल कंडक्ट अ फिजिकल इवेंट। ऑनलाइन हमने टिकट्स वगैरह बेच दिया, तो टिकट्स का ही आपको 20-25 लाख रुपए टिकट का ही आ जाएगा। ठीक है, तो आई विल गो थ्रू दैट एंड ओके, आई विल कंफर्म सेंड यू एक्चुअली। द, फिर उसके बाद मैं आपको कल कनेक्ट करता हूँ, राइट? हाँ, कल से ऐसा हमको यही टाइम पे से आफ्टर 7 PM, ठीक है? हाँ। ठीक है। ओके, सर आप कहाँ से हो, मतलब मुंबई में कहाँ पे? आई रिसाइड इन घाटकोपर एक्चुअली। अच्छा, घाटकोपर में हो। मैं ठाणे में था पहले। घाटकोपर। ओके, थाने में आई यूज्ड टू वर्क विद मोतीलाल ओसवाल। आई वाज अ ब्रांच मैनेजर विद अ फ्रेंचाइजी लोकेशन विच एरिया? in इक्विटी थाने, वसंत विहार, अम्रपाली आर्केड शॉपिंग सेंटर, अम्रपाली शॉपिंग सेंटर। अच्छा, हमारे ओके। तो स्टॉक सर्च करके एक ब्रोकिंग फर्म था मोतीलाल हम्म। ओसवाल का, बिगेस्ट फ्रेंचाइजी विद मोर देन 2000 प्लस क्लाइंट्स। आई वाज हैंडलिंग दैट फ्रेंचाइजी लोकेशन। ओके सर, सो है वो, ठीक है। मतलब आपका आपका मल्टीपल प्रोग्राम्स बन सकता है, दैट इज टीम हैंडलिंग। नहीं, मेरा तो मल्टीपल, देखो आई हैव इनटू मल्टीपल फील्ड्स, आई हैव इंटरेस्ट इन न्यूमरोलॉजी आल्सो। आई हैव हम्म। लर्न थ्रू बत्रा जी से कोर्सेज किया है, अरविंद सूद से किया है। नाउ सर, अभी आपका नॉलेज है ना, नॉलेज 90% हो गया आपका, ठीक है। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन एनकेश सेल्स, करना बाकी है सर, एनकेश करना बाकी है, एनकेश नहीं किया है ना? है। तो वो अभी आप सेल्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। नाउ यू हैव द ट्रेजर, नाउ यू हैव टू सेल दोस ट्रेजर, राइट? ओके, चलिए सर, बाय। या श्योर श्योर सर, थैंक यू। ओके।